Hello and welcome. You're with IndiaPostLive.com, India's first live conversation web television. This is your very own platform where you can join us on our conversations, talk to us as we speak. You can tweet us and we will read out your tweets online. And of course, you can leave your audio comments, your video comments and your posts that we would love to have to keep the conversation going even after the conversation in the studio is over. Well, I'm Nilanjana and today we are going to talk about the 200 crore club. That is the latest club of Bollywood, and I can assure you that the 100 crore club is passé. Nobody really bothers about the 100 crore number anymore the way these films are doing. So I'm sure you have guessed. Salman Khan's starrer Kick has surpassed 200 crores. It took 11 days to do that. The question we are asking is, will Dhoom 3, which has been the highest grosser so far, will that film be kicked? Take a look. मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ, समझ में नहीं. With a domestic box office collection of over $33 million or 201 crore rupees so far and counting, Bollywood star Salman Khan's latest release, Kick, has become the biggest grosser Hindi film of 2014. Overseas, the movie has collected over $9 million or 54 crore rupees. That brings us to the next logical question. Will Salman's magic break the record made by Aamir Khan's Dhoom 3? Dhoom 3 is the only Indian film to cross the 500 crore rupee magical figure. The blockbuster had raked in more than $81 million worldwide. So talking about millions, the million-dollar question is, will Kick be hard enough to push past Dhoom 3's record? All right, so we are going to, the question we are asking is whether Kick will surpass Dhoom 3. In fact, of course, in 2014, it has been the biggest grosser. And joining us on the conversation in the studio is Dilip Kapse. Dilip is a film critic and he especially writes on Bollywood films. Thank you so much, Dilip, for joining the conversation. And let me also introduce my online guests from Mumbai. I have Prashant on Google Hangout. Prashant is another film critic. Prashant, welcome to India Post Live. Good evening, Nilanjana. Hi, Dilip ji. Hi. Hi, hi. Great to have you. Great to have you. We are going to talk about Kick and Dhoom 3. I also have Chandidat Shukla. Chandidat is features editor, entertainment section of Dainik Bhaskar, and he's also joining us from Mumbai. Chandidat, namaskar. India Post Live में आपका स्वागत है. Can you hear me? Okay, I think we have a slight connection problem there. We're going to try and get him. And also joining me from Delhi, of course, our very own Salman Khan. Big fan of Salman Khan is Ankit Sinha. Ankit is beaming already. Ankit, welcome to the conversation. Hi. Thank you. Hello. Hi. Okay, you'll have to speak up a bit louder. I can't hear you too well. But wait, I'll get you first. Let me first talk to Dilip. 100 crore आजकल मतलब कुछ भी नहीं है. It's all about the 200 crore plus now, huh? We've had these amazing films. We've had Chennai Express. We've had Dhoom 3. क्या लगता है आपको कि अभी कल तक 201 था, आज 210 है. 210 करोड़ पार कर चुकी है. What do you think? Which way will Kick move now? किक की कमाई जो है वो वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि फिल्म जो है क्रिटिकली उतना पसंद नहीं की गई जी. लास्ट शो में भी हमने बात की थी. तो सलमान खान के फैंस फिल्म पे टूट पड़े और कमाई जो है वो बहुत अच्छी जा रही है. अब ये धूम को पीछे छोड़ेगी या नहीं. आज 8 तारीख लगभग 7 तारीख है. एक हफ्ते का अभी हमारे पास और वक्त है. सिंघम रिटर्न्स 15 को रिलीज़ हो रही है और शायद 14 या 13 से उसके प्रीव्यू शोज होने शुरू हो जाएंगे. किक के पास एक हफ्ता और है और जिस तरह से कमाई की है, क्योंकि 11 दिन में आप ये आंकड़ा मुझे बता रही है, थोड़ा सा डाउन हुआ है कलेक्शन. अब जिस तरह से शुरुआत हुई थी, तो जिस तरह से डाउन हो रहा है उस तरह से देखना कि 500 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा लेना वो थोड़ा सा मुश्किल अब लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म एक हफ्ते बाद ही है. तो ये कहना कि धूम का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ये थोड़ी मुश्किल बात मुझे अब लग रही है. आपको मुश्किल लग रही है? लेट मी आस्क प्रशांत. प्रशांत, व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक धूम 3 इज गोइंग टू बी किक्ड? मैं बिल्कुल सहमत हूँ दिलीप जी से, और दिलीप जी ने बिल्कुल सही बात बताई.
और जिस तरह से फिल्म की शुरुआत हुई थी, फिल्म को पिच किया गया था, उस हिसाब से फिल्म ने बिजनेस नहीं किया है और उतना एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी है। सलमान खान साहब के खासे फैन हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, सब उनसे प्यार करते हैं, और उसी जगह सेम टाइम एग्नी ये है कि उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत खा गया है फिल्म का, जिसकी वजह से फिल्म उतने रिपीट शोज नहीं मिले, उतना प्यार नहीं मिला जितना उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि यूटीवी ने तो रिलीज किया और एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का डेब्यू था ये, और सलमान खान की ये वेल मेड फिल्म थी। अगर आप फिल्म देखेंगे, सिर्फ सिनेमेटिक, अगर आप इनका फिल्म को ये दृश्य देखेंगे आप, तो बहुत ही बढ़िया बनने की फिल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्क्रीन प्ले में और स्टोरी में लैक करती है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं रहा दर्शकों पे। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत खराब गया है फिल्म का। कुछ क्रिटिक्स ने इसको बेहिसाब 4 स्टार दे दिए, किसी ने 2 स्टार दिए हैं, तो बहुत ही आया है। लेकिन मैं सहमत हूँ दिलीप जी से कि फिल्म का ड्रॉप हुआ है। कल का कलेक्शन 4 करोड़ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि धूम 3 के करीब पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन दिलीप और प्रशांत, आप दोनों से एक इंसान हैं जो असहमत होने वाले हैं, उनका नाम है अंकित सिन्हा, और अंकित से मैं राय जानना चाहूंगी। अंकित, व्हाट डू यू थिंक धूम 3 इज ऑन इट्स इज गोइंग टू बी सरपास्ड दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू? It's slightly a bit early to predict that Kick will surpass Dhoom 3. Just because of one point, if Singham 2 was not releasing on 15th August, then definitely it would. But Ajay Devgn starred Singham 2. It's one, that audience can shift to that particular thing. And I would like to, I would not agree with what Prashant said, that Salman Khan movie, the starrer, the critics rated him 4-star or 3-star. I guess Salman Khan fans, they do not go by critics. Yes, of course. They do not read ratings and all. He has his overall image, and people prefer to watch him because, as we have discussed earlier also in previous show, that Salman Khan has a brand image. He carries himself into a character in every film. So people just love that. And I guess it would come around 400 crores. That's my prediction. It would come around 400 crores. Okay. This thing that Ankit raised about Salman Khan, हमने पहले भी इस पे बात हम कर चुके हैं. Salman Khan, in terms of acting, in terms of different characters, well, there's nothing happening. In terms of dialogue delivery, in terms of the style of walking, in terms of the dance movements, it is all the same. But people do not watch a Salman movie to see Lucky Singh or to see Devil or to see somebody else. They go to see Salman Khan, period. He is the star. है ना? बिल्कुल, सलमान खान के साथ हमेशा से जिस तरह से उनकी ब्रांडिंग की गई है, कभी भी उनके किरदार जो है, कभी सलमान खान का जो कद है उससे ऊपर नहीं गए। आप उनकी कोई भी फिल्म देख लीजिए, आप कभी किरदारों से प्यार नहीं करेंगे, आप सलमान खान से प्यार करते हैं। उस तरह की उनके लिए दृश्य गढ़े जाते हैं, उस तरह की कहानी बनाई जाती है, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि आप किक देखने जाइए तो आपको हर एक सीन में ऐसा लगेगा सलमान खान आने वाला है। तो पहले होता था कि फिल्मों में हम एक बार हीरो की एंट्री दिखाते थे बहुत स्ट्रॉन्ग मसाला फिल्मों में, लेकिन हर एक सीन के लिए बहुत तबीयत से, बहुत मेहनत करके एंट्री, री-एंट्री जैसे कहेंगे हम। So he is the alpha male. Salman Khan is the alpha male who cannot do anything wrong. He is somebody who is kicking the bad guys. लेकिन वो जब रोमांस भी करते हैं उसमें कोई इस तरह का सीन नहीं होता जो एक पूरी फैमिली जाके नहीं देख सकती। ये शायद एक और कारण है इनके पॉपुलैरिटी का। लेट मी आस्क दैट क्वेश्चन टू प्रशांत। प्रशांत, ये कहा जा रहा है सलमान खान की फिल्म्स के बारे में कि हालांकि हम सब सलमान खान को देखने जाते हैं, लेकिन ये जो उनका पर्सोना है कि अल्फा मेल पर्सोना, डूइंग गुड, एंड उनके रोमांटिक सीन्स में वाल्गैरिटी, सो कॉल्ड वाल्गैरिटी नहीं होती है, इसलिए पूरी फैमिली देख सकती है उसकी फिल्म। इस पे आपका क्या कहना है प्रशांत? सलमान खान साहब एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, और उनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो सब उस इंटेलिजेंस से मुखातिब हैं।
और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जहाँ पे कोई वल्गैरिटी नहीं होती, जहाँ पे पूरी फैमिली देख सकती है। ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू प्रपोर्शन है, क्योंकि यू सर्टिफिकेट फिल्म्स को सैटेलाइट वैल्यू बहुत जबरदस्त मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान खान साहब की अगर हम ट्रेड की बात करें, सलमान खान साहब ने एक बहुत जबरदस्त डील स्टार टीवी के साथ साइन की हुई है अगले 4 से 5 सालों के लिए, जहां उन्हें मजबूरन यू सर्टिफिकेट फिल्म ही बनानी पड़ेगी, जैसा उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है जिसपे हम आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और बात कर रहे हैं, जो मंच है कि धूम 3 को ओवरटेक करना जी। पहली बात, कई लोगों को आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो लोग थिएटर से बाहर निकले, जो लोग ना तो फिल्म बिजनेस से रिलेटेड है, उनका ये कहना था कि ये स्टोरी तो धूम 3 जैसी है। अच्छा, कई लोगों को धूम 3 जैसी लगी। अच्छा, और किक से जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, बहुत अच्छी बात दिलीप जी ने कही, और मेरे एक दोस्त बैठे हैं जो सलमान खान साहब के खासे फैन है, 400 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, पर बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ये प्लान किया गया था उस अनुसार ये नहीं हुआ। अगर आप धूम 3 की बात करेंगे, और आपने जैसे कहा सिंघम भी आ रही है 15 को, तो that will also have, yeah, that will also have. अगर आप ट्रेड फिगर्स पे जाएंगे तो धूम 3 का फर्स्ट डे कलेक्शन 35 करोड़ प्लस था, और मैं आपको बता दूं कि ये 3800 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी धूम 3, और ये फिल्म 4000 स्क्रीन में 2000 स्क्रीन में रिलीज हुई है, उसके बावजूद फिल्म 30 करोड़ नीचे का बिजनेस कलेक्ट कर पाई, विच वॉज अ वेरी शॉकिंग थिंग। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि क्रिटिक्स ने कहा, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं नाम लेना चाहूंगा, तरण आदर्श साहब ने, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा, तरण आदर्श साहब ने दिल खोलकर 4 स्टार दिए इस फिल्म को, और उनके अगेंस्ट बाकी सारे क्रिटिक्स ने इसको 1 स्टार 2 स्टार, किसी ने 0 स्टार दिया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दर्शक वहां सिर्फ सलमान खान को देखने गए थे, और जहां वो ना उम्मीद हुए हैं, क्योंकि फिल्म में हंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, अकेले सलमान खान को की फोटो देखने से कुछ नहीं होगा। Okay, that spoken like a true critic, and of course Ankit speaking like a true Salman fan. Let me bring in Chandi Dutt Shukla. I think we have been able to get him. Chandi Dutt Shukla is the features editor, entertainment segment of Dainik Bhaskar, and he joins us online from Mumbai. Chandi Dutt Shukla, namaskar. India Post Live में आपका स्वागत है. How are you? मैं अच्छा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा सा जरा सा जोर से बोलिए प्लीज। नमस्कार नीलांजना जी। नमस्कार चंडी दत्त जी, मैं आपको आई वांटेड टू आस्क यू, ये जो पूरी द 200 करोड़ क्लब पे हम बात कर रहे हैं और हम ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपके ओपनिंग कमेंट्स मुझे चाहिए, फिर हम आम जनता के पास जाएंगे। आई वांट टू आस्क यू, क्या आपको लगता है कि किक धूम 3 से ज्यादा बिजनेस करेगी? मुझे लगता है कि सिनेमा के बिजनेस को लेकर किसी तरह का प्रेडिक्शन किया ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा? क्योंकि अब तक कोई भी समीक्षक ये तय कर ही नहीं सकता कि किस फिल्म की कितनी कमाई होगी, कोई फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, क्योंकि दर्शकों का मुंह भाप पाना जब तक फिल्म रिलीज न हो तब तक एक तो पॉसिबल नहीं होता, और फिल्म रिलीज हो भी जाए तो उसके सामने कंपटीशन के लिए कौन कौन सी फिल्में आने वाले हफ्तों में आ रही हैं इस पर तय होता है। राइट। कल रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की इट्स एंटरटेनमेंट, उसके बाद सिंघम 2 आ रही है, फिर मर्दानी आएगी रानी मुखर्जी की, और इतनी फिल्में हैं कि ये 500 करोड़ का जो बताया जा रहा है बाकी जगहों पर, आपके यहाँ तो 400 करोड़ हमारे एक साथी ने बताया, मुझे लगता है कि उसको छू पाना थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा। हालांकि सलमान के दीवाने बहुत सारे हैं तो कुछ कहा भी नहीं जाता। All right, let me now bring you the voices of the people. लोग क्या कहते हैं, क्या कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी है, कौन सा स्टार ज़्यादा अच्छे हैं, धूम 3 या किक? Let's find out what the people have had to say. Do you think that kick will overcross the collection of Dhoom 3? हमको लगता है कि धूम 3 का रिकॉर्ड ये तोड़ देगी किक से। धूम 3 and kick 2000 worst movies. In the whole film, only Nawazuddin Siddiqui acted. Salman Khan did nothing at all, and Jacqueline was like an eye candy. That's all. शायद छोड़ भी सकते हैं क्योंकि मुझे धूम 3 इतना खास नहीं लगा, मैंने देखा। Yeah, it will. Why do you think so? Because it's a nice movie. It have action, drama, thrill, romance, everything. हाँ बिल्कुल छोड़ जाएगी क्योंकि सलमान खान को लोग बहुत पसंद करते हैं। I don't think so.
No. मैंने किक देखी नहीं। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाई, क्योंकि सलमान खान की मूवी का नाम होता है, नाम को चलती है, लेकिन आमिर खान की मूवी के अंदर उसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं, तो उसके अंदर देखने लायक मटेरियल होता है, तो शायद ही कर पाए किक। No, I don't really think that kick will going to overcross Doom 3. ओवरऑल तो नहीं कर पाएगी वो। इंडिया में भले पीछे छोड़ती, लेकिन ओवरसीज वगैरह सब मिला के तो पीछे नहीं छोड़ पाएगी। All right, so a mixed response there from people, but what was interesting was कि आमिर खान की फिल्म में there's some content जो सलमान खान की फिल्म में नहीं होती है। लेकिन another interesting thing, Dilip, is that हम तो 100 करोड़ क्लब को पीछे छोड़ के आ गए, 200 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब तक क्रिश 3 के पहले again it was the Khans, Salman, Amir and Shah Rukh, who were a part of the club. Krish 3 के बाद Hrithik Roshan has also been a part of that club, right? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एक जगह पे अंकित, सॉरी टू रियली डैम्पन योर स्पिरिट्स देयर अंकित, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे धूम 3 को ये मैच नहीं कर पाई, धूम 3 को 10 दिन से कम लगे 200 करोड़ तक पहुँचने में, और इसको 11 दिन लग गए। तो probably that says something about what you're saying, that it has been struggling, the film has been struggling. लेकिन एक और पॉइंट मैं यहाँ पे, अच्छा हाँ अंकित, yes very quickly. My point is that what as a person I feel, or when I have interacted or when I went to watch the movie with the PVR guys, what they told me that this is the Salman Khan's first movie which have released before Eid. So they told me at that time only that this may affect the collection. Why? Because this was first, because all movies have released after Eid. So it's like after the celebration begins, then all movies have released, and this is the first movie that on Eid that was released before so they have told me that, and I would agree to other panelists on that thing, that it may not go to 500 crore, but other than that, adding to the 200 crore, even Ranbir Kapoor is now a part of that with Ye Jawani Hai Diwani. Okay. And thanks for pointing that out, Ankit. Let's in fact take a look at a graphic of the biggest grossers, in recent times that we have seen. And after that, we will take a look, of course, at Salman Khan's own films and how much they have grossed. First, a look at the biggest grossers coming up on your screens. Of course, Krish 3, Chennai Express, as we were talking about, 3 Idiots, okay, Ye Jawani that Ankit just mentioned, 131 crores, Rowdy Rathore, Agnipath 123 crores, Jab Tak Hai Jaan also 120 plus, Barfi 120, Ra1 had 115. These were all a part of the, that time we used to talk about the 100 crore club and we used to make a big deal out of it. So these are the Bollywood's biggest. Salman Khan's, of course, one after the other. We have Wanted, we have Jai Ho, we have Ready. The number seems to be increasing. Bodyguard, again, a part of the 200 crore club. Dabangg 145, Dabangg 258. Ek Tha Tiger, just missed that mark, and Kick 210 crores and counting. So these are the big. Dilip, I want to ask you, and then I will also ask this question to Prashant. Do you think कि ये नंबर सुन के, पहले 100 करोड़ था, अभी 200 है, यार एक बार जानी चाहिए ये फिल्म देखने? It's God's. Do you think now the fact that it's crossed the 200 crore mark, do you think that is going to again draw people to the? I'm just trying to understand what Ankit is saying, that he's still feeling that it'll make money. Do you think the whole hula la about it, the fact that it's crossed 200 crores, do you think that will draw people to the theatres? नहीं, इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि एक फिल्म की जब रिलीज़ डेट तय होने होती है तो लगभग ये तय होता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर कितना कमाई होगी मैक्सिमम, वो पता हो जाता है कि इतना तो होगा। अब क्योंकि किक को अच्छा खासा टाइम मिल गया था, जो अभी एंटरटेनमेंट रिलीज़ हुई है उसके पहले कोई बड़ी फिल्म नहीं आई थी, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया, उसके बीच में उसने इतना पैसा कमा लिया है। और ये सारी चीज़ें तय थी कि हाँ, अक्षय की फिल्म आ रही है, उसके बीच में इतना वक्त है और हम इतना पैसा कमा लेंगे। रही बात नंबर्स की, तो 2009 में जब 3 इडियट्स रिलीज़ हुई थी, 202 करोड़ समथिंग उस समय बिजनेस था उसका, जो मैंने आंकड़े देखे। देखिए, उस फिल्म को क्रॉस करने के लिए पूरे 4 साल लगे थे।
चीज़ को। और उस बीच में स्क्रीन्स बड़ी हैं, जो फिल्में रिलीज़ होती है उसकी स्क्रीन्स बड़ी है, मल्टीप्लेक्सेस बड़े हैं, फिल्में देखने वाले बड़े हैं, लेकिन फिर भी उस मार्क को तोड़ने में इतना टाइम लग गया था। और उससे पहले हम देख रहे हैं, हम 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आपके कौन के 100 करोड़ 94 में उसने कमाए थे। कितने हफ्ते चलने के बाद उस फिल्म ने वो पैसे कमाए थे। जी। और अभी के दौर में क्या हो रहा है कि हमें पता है कि हफ्ते भर के अंदर हमारी फिल्म जो है 100 करोड़ में चली जाएगी, बड़े स्टार्स को पता होता है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग, प्रमोशन इतनी बड़ी ज़ोर शोर से, इतने बड़े ज़ोर शोर से होता है कि एक हफ्ते के अंदर हमें पता होता है क्या कितना पैसा है कमाएंगे। और जहाँ तक दर्शक ये सोच के कि नंबर्स से कि इतना कमा लिया, अब कोई आदमी दोबारा तो किक देखने नहीं जाएगा। हार्डकोर सलमान फ़ैन होगा, वो एक बार या दूसरी बार जाके देख लेगा, लेकिन ऐसा आदमी जो सलमान खान का फ़ैन नहीं हो, उसने किक देखी और दोबारा जाकर नहीं देखेगा। और फिल्में जो कमाई लगातार बढ़ती है, धूम 3 को आमिर के फैंस ने, जो भी चाहने वाले थे, उन्होंने देखा है, दूसरी बार तो देखा ही है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 2 बार देखा। तो जब तक कि फिल्मों को कोई आदमी 1 बार 2 बार 3 बार फैंस जब तक नहीं देखते, तब तक कि उनके इंक्रीज़ नहीं होते नंबर्स, जो जिसे हम जादुई आंकड़ा कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िल्म की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कितनी अच्छी है, ताकि उसे लोग 2 बार देख सके, 3 बार देख सके, उससे भी नंबर इंक्रीज़ होते हैं। एक बार अगर किसी फिल्म को फैंस भी जाकर देखे तो उससे नंबर्स नहीं बढ़ने वाले। ऑल राइट। प्रशांत, कैन आई आस्क यू, डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन दैट? अभी जो दिलीप ने कहा, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो फिगर है, इसी के बारे में सुन के लोग जो वापस से जाते हैं थिएटर्स में, या पहली बार अब तक जो नहीं गए हैं वो जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं दिलीप जी से फिर सहमत हूँ। और आपके क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। आपने भी अभी कहा कि लोग आंकड़े सुन के दोबारा देखने जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस फिल्म को देखने दोबारा लोग नहीं गए हैं। दूसरी बात, इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि इस फिल्म का माउथ ऑफ वर्ड बहुत खराब हुआ। सबसे बड़ी बात, उसके अगर रीजंस पे जाएंगे तो उसके रीजंस क्रिएटिव है, क्योंकि जब ये फिल्म प्लान की जा रही थी और जब उसको यूटीवी ने जोड़ा था, तो ऐसा कयास लगाई जा रही थी कि उसका एक बहुत बड़ा आइटम सॉन्ग सरिका दीपिका पादुकोण करेंगी, जिन्होंने बैकआउट किया। ये सलमान के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगर शायद दीपिका पादुकोण इस फिल्म ज्वाइन होती, ये फिल्म 300 करोड़ रुपया क्रॉस करती इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि हीरोइन फैक्टर बहुत बड़ा होता है हिंदुस्तान में। क्योंकि जितने भी सलमान खान फैन हैं, औरतों से ज्यादा मर्दों की संख्या ज्यादा है। तो हीरोइन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो वैल्यू कटरीना कैफ को और दीपिका को मिल रही है, वो वैल्यू कैटेगोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग फिल्म डिजाइन कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, अगर आप देखेंगे किक देखेंगे तो आपको सिर्फ किक में के प्रोमो में सिर्फ जो जैकलिन फर्नांडिस है, एक तो क्लोजअप शॉट्स में दिखाई देती हैं और एक डांस करते हुए थोड़ा सा दिखाई देती है। लेकिन अगर आप धूम 3 देखते हैं तो बहुत स्पेसिफिकली उसमें एक पूरा गाना था जिसमें ये दिखाया गया था कि कटरीना कैफ कितनी खूबसूरत है, कितनी मेहनती है और कितनी अमेजिंग है। आई थिंक उसने तो ज्यादा अट्रैक्ट किया था। प्रशांत, आई एम वेरी हैप्पी कि somebody is talking about the women in Salman Khan's films. I mean, nobody talks about the women. The women are just... Women power matters, man. Women power matters. Of course it does. I'm saying I'm happy. I'm really glad you're saying this. Let me get Chandidat Shukla's impressions on this, Do you think, Chandidat ji, आपको क्या लगता है कि जैकलिन फर्नांडिस के रहने से नरगिस फकरी, I think, did that item number finally. I haven't watched the film. But do you think इनके रहने से फिल्म की जो रेवेन्यू है वो थोड़ी सी कम हुई है? मैं प्रशांत की बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि सलमान में देखने सलमान के प्रशंसक ही जाते हैं और उन प्रशंसकों का जो संक्रमण होता है, थोड़ा आप ये मान लीजिए कि उनका चाहे प्यार मान लीजिए या उनकी जो एक बजिंग है आपस में बातचीत, उसकी वजह से लोग जाते हैं फिल्में देखने। पर सलमान के अलावा सलमान के प्रशंसक पर्दे पर दूसरे को देखने का इंतजार ही नहीं करते। और जहाँ तक किक की बात है, किक पूरी तरीके से सलमान का सिनेमा है। जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन एक्टर हैं, इसलिए वो अपनी धाक वहाँ जमाते हैं। वरना आप देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती 3 दृश्यों में समेट दिए गए हैं। रजित कपूर जितना बड़ा कलाकार, वो किसी एक्स्ट्रा की तरह नजर आता है। एक मशहूर कॉमेडियन, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो सुनील पॉल नाम है उनका, वो किसी एक्स्ट्रा की तरह आते हैं। तो वो सलमान का सिनेमा है, सलमान के प्रशंसक उससे जाते हैं देखने, और वहाँ पर किसी तरह की सुंदरता, किसी भी एस्थेटिक सेंस का बहुत विशेष मतलब नहीं, कोई खास मायने नहीं है। सलमान, हमारे एक पैनलिस्ट हैं, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस फिल्म के ज्यादा कमाई ना करने की वजह इसका क्रिएटिव पक्ष का कमजोर रहना है। पर
एक और बात है कि सलमान की फिल्मों से सलमान की फिल्मों में किसी कहानी का इंतजार भी दर्शकों को नहीं होता। सलमान हमारे पड़ोस के घर के रहने वाला एक लड़का है जो बाइक पे स्टंट करता है, लड़कियों को बहुत सारा प्यार करता है, अपना अंदाज दिखाता है और उसका वही अंदाज देखने जाते हैं। दरअसल हमारे जो सपने पूरे नहीं होते, हम पर्दे पर देखते हैं अरे अपना सल्लू भाई कर रहा है भाई, राइट लड़की राइट, यही मैं कह रही थी, यू नो, मैं थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि लोग सलमान खान को देखने जाते हैं, लेकिन सलमान खान की फिल्मों में जो एक बात है कि वल्गैरिटी नहीं है, उस तरह के ऑब्सीन सीन्स नहीं है, इसलिए फैमिलीज जाती है उनकी फिल्में देखने और उससे रेवेन्यूज काफ़ी बढ़ती है। उसने वो पर्सोना मेंटेन किया है ऑन स्क्रीन। मैं एक और कहना चाहूँगा, बिल्कुल वहाँ वल्गैरिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहाँ सलमान भाई हैं ही, मतलब सब कुछ सारा प्रदर्शन करने के लिए सलमान भाई काफ़ी है, तो किसी और प्रदर्शन की जरूरत नहीं। अब आमिर खान भी पीके में आ ही गए प्रदर्शन में। इनफैक्ट फिल्म रिलीज होने से पहले मैंने कई फैन से पूछा था, आप मतलब वेट कर रही हैं, फीमेल फैन से आप वेट कर रही है कि इस बार भी वो अपना शर्ट निकालेंगे, एंड दे वर लाइक यस 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 ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर हिम टू टेक ऑफ। सो थैंक यू चंडीदास जी, बहुत अच्छा आपने वो किया। बिफोर आई गो अक्रॉस टू यू अंकित, लेट मी क्विकली, बिफोर वी रैप अप द कॉन्वर्सेशन, लेट मी क्विकली ऑल्सो ब्रिंग यू वॉइसेस ऑफ द पीपल। लोग क्या कहते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है, सलमान या आमिर? लेट्स टेक अ लुक। If I ask you, in your opinion, who is a better actor, Amir or Salman, what would you say? Shahrukh. I don't like Salman Khan, that's all. He's not an actor, he can't act. For me, if you talk about acting, yes, Amir Khan is much better than Salman Khan. Obviously Amir Khan. सलमान अच्छा लगता है। सलमान खान ही लगता है। क्यों? उसका एक्टिंग वगैरह वो सब बॉडी Amir Khan is the better actor. Amir, definitely Amir. Salman Khan is the raw superstar. Though Amir Khan is, well, he really works hard to become what he is. Amir Khan better है मेरे हिसाब से। एक्टिंग में तो आमिर खान। फोटो क्लिक कराना। All right, so most people आमिर खान। इसमें तो कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आमिर खान बेहतर अभिनेता है। और सबसे अच्छी बात सलमान खान के बारे में ये है कि वो उन्होंने कभी बहुत प्रयास नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, फिल्मों को लेकर कि मैं अभिनय की इस कसौटी पे उतरूंगा, इस तरह के मुश्किल किरदार निभाऊंगा, इस तरह के किरदार जीऊंगा, या इस तरह के कैरेक्टर होना चाहिए। उन्हें पता है कि वो एक स्टार है, वो एक्टर नहीं है, और एक स्टार को स्टार बने रहने के लिए जो चीज़ें करनी होती है या जो चीज़ें करते हैं वो करते आए हैं और वो करते हैं और वो करते रहेंगे। वो आगे भी कोशिश नहीं करेंगे बतौर एक्टर अपने आप को साबित करने की। And he's not growing any younger. He's 48 years old. Yeah. I don't think we should forget that. Prashant, final comments from you, please. Prashant. पूरी इस कॉन्वर्सेशन को उस पॉइंट पे लेके आऊंगा कि आमिर खान वर्सेस सलमान खान, धूम 3 वर्सेस किक। जी, मैं यहाँ अगर हम डिबेट करें तो एक अंत का अंत नहीं है। सलमान खान बहुत अमेजिंग सुपरस्टार हैं, जिनसे बहुत बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि अब समय बदल गया है। अब लोग अपग्रेड हो गए हैं, ऑडियंस अपग्रेड हो गई है। ऑडियंस को सलमान खान के सर्कस के अलावा एक अच्छी कहानी भी एक्सपेक्ट करती है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। All right. Prashant, thank you so much for joining the conversation. That was great having you. आपके जो insights थे बहुत ही अच्छे थे। और चंडीदास शुक्ल, last comments from you. हम जो तीनों फिल्म क्रिटिक्स हैं, तीनों सहमत हैं कि शायद धूम 3 को सरपास न कर पाए, and it has been disappointing. Okay, I think we've lost Chandidat. We'll try and get him back. Ankit, you're the lone fighter for Salman. Lone? No, there are many. But there are many. I'm saying in this conversation, in this studio, you're all alone. And I guess there's no debate who's a better actor. Even Salman Khan every time appreciate Amir Khan. Right. So that's not an Amir Khan and Salman Khan. They're like the Jai Viru of our industry currently. Okay. So they both complement each other. And coming back to this debate, Dhoom 3 versus Kick. So I'll just say that it might touch 400 crores just because I'll just give an example. Jai Ho, it's one of the, it's not, I expect a Salman would do that type of film, but he did, and his fans made him a 100 crore club, so you never know. You can never underestimate Salman fans. So they can also push it to 400 crores or maybe 500 crores. Wow, that is some wishful thinking there, Ankit, perhaps. But then yes, you're right, it is too early to say. चंडीदास शुक्ल ने भी वही कहा। चंडीदास जी, अगर आप हमारे साथ अभी हैं, final comments from you?
अच्छा, चंद्रिका जी हमारे साथ अभी नहीं है, but doesn't matter. I mean, it was great having him on the show, and I would like to thank him. Prashant, thank you so much. Ankit, thank you so much. मैं आपके लिए, आपके इस नए ताजा तरीन शो के लिए जो आपने शुरू किया, ये फोरम बहुत अमेजिंग है. आई थिंक लोग से जुड़ेंगे. थैंक यू. और हम आप जैसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर जगह से, दुनिया से लोग हमारे साथ जुड़े वाया इंटरनेट, एंड इंटरनेट का लाइन स्ट्रॉन्ग होता जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे शोज में लाएं. थैंक यू सो मच प्रशांत. रंजना जी, डायनामिक लोगों की जरूरत है और हर इंसान डायनामिक लोगों को ढूंढ रहा है, और आप डायनामिक हैं और ये शो भी डायनामिक होगा. थैंक यू सो मच. माय डे इज मेड विद दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू, एंड थैंक यू सो मच. दिलीप, फाइनल कमेंट्स फ्रॉम यू वेरी क्विकली. Final comments from you? No, Dhoom 3 is somewhere else. Dhoom 3 वहीं पे रहेगी और आने वाले कुछ सालों तक रहेगी. All right, great. All right, thank you so much. I would like to thank Dilip and all my online guests. The conversation continues on India Post Live through your tweets, your audio and video comments, and of course your posts. Thanks so much for watching.